So the objectives of the class are first to identify the anatomy and physiology of the lymphatic system, then to understand about the etiology and classification of the lymphatic disorders along with their clinical features and management. So anyone lymphatics? पढ़ा है कभी lymphatic? हिंदी comfortable? So lymphatic system is comprised of, as it's written, 3 elements. Periphery में lymphatic capillaries जो lymph को absorb करते हैं. After that there are lymphatic channels which are the collecting vessels. जैसे normal हमारा arterial और venous supply में रहता है. The capillaries, then venous system, and then the draining. तो इसमें भी there are lymphatic capillaries, then the collecting channels, and then the lymph nodes. ठीक है. इस डायग्राम में as you can see these are the channels, जो lines हैं these are the channels, then the lymph nodes. Lymph node के multiple groups रहते हैं, तो they are the lymph node groups, and after that they drain into the thoracic duct. Lower limb thoracic duct में drain करता है, और जो right side का है it directly drains into the jugular and the subclavian junction. ठीक है. As you can see, lymphatic capillaries, majority of the fluid जो capillary action से release होता है tissue में, वो maximum lymphatic capillaries take that fluid, rather than venous transfer होने की जगह जो fluid extravasate होता है capillary से, that is the work of the lymphatics to take that. So lymphatics takes the majority of the fluid that leaves the blood capillaries. This is a passive transport. So it takes small molecules as well as big molecules, because the lymphatic capillaries as compared to the arterial and venous capillaries, the gap junction in lymphatic capillaries are wider. So the bigger size molecules like proteins can also be absorbed. So around 90% of the proteins that go back into the system is through the lymphatic vasculature. ठीक है. तो lymphatic capillaries से गया वो lymphatic channel में. After the lymphatic the collecting lymphatics, they then take into the lymph node chains. As you can see in the previous diagram, these are the lymph node chains. The circular node-like structures, and these are the lymph node chains. This mechanism of, initially it was a passive transport because of the gradient. From the collecting lymphatics, the draining into the lymph node challenge is an active peristalsis. So the muscle vasculature contracture, skeletal muscle compression and intraluminal walls, जो कि backflow prevent करेगा. So हमेशा collecting vessel से towards the lymph node ही transfer होगा. As I already told, lower limb lymphatics drain into the cisterna chyli, that drains into the thoracic duct, which is right upper limb है that drains into the confluence of the right internal jugular and subclavian veins, and left side वाला इसी thoracic duct के through ही drain करता है. What are the functions of lymphatics? एक तो बताया, हाँ वो immunity बोला ना, same ही चीज. See, its function is mainly reabsorption करना. तो जो भी कैपिलरी से एक्शन से जो वहाँ पे टिश्यू में फ्लूइड आया है, दैट इज रीअब्सॉर्ब. हाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट अंडरगो अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अराउंड 50 to 100% ऑफ द इंट्रावैस्कुलर प्रोटीन्स आर फिल्टर्ड दिस वे. तो जो भी प्रोटीन एक्स्ट्रावसेट होता है कैपिलरीज से, दैट गोज बैक इनटू द सिस्टम. नहीं तो इतना प्रोटीन लॉस हो जाएगा. So to prevent that, the lymphatic system helps in reabsorption. Second is, as you told, immunity, antigen presentation. Because it can hold big size molecules also. Capillaries don't permit big size molecules to enter. So lymphatics do that work. Whatever organisms or antigens that enter the bloodstream, they are filtered out by the capillary action, and from there, those big molecules also can be absorbed into the lymphatic circulation. So once these antigens, immune cells, microbes, mutant cells enter the interstitial space, from there they enter the lymphatic system via the lymphatic channels, and then they reach the lymph nodes, which is the first line of immune system. तीसरा function, transportation, fat metabolism में chyle. Have you heard about chyle physiology में? जो फैट मॉलिक्यूल्स को अब्सॉर्ब करके वो काइल में जाते, तो दैट इज द थर्ड थिंग. ठीक है. सो क्रॉनिक
it's a progressive condition. तो ये दोनों important है. It's not an acute condition, it's a chronic condition. Long standing रहेगा तो lymphedema रहेगा. It is progressive. It is not like आज edema develop हुआ and tomorrow it's gone. It is a progressive condition. तो आज से कल में ज़्यादा ही होगा. It won't decrease. So chronic progressive condition that is characterized by tissue edema. As you told, there is an inflammation. There is, because of multiple episodes of tissue edema, there can be a fibrosis. So there is subcutaneous tissue fibrosis, and because it's involved in the immune response system, so there is impaired local immunity. Because there is no antigen presentation happening, no immunity at that side, therefore the patient is prone to recurrent infections, recurrent cellulitis. Okay. It is actually an inability of the existing lymphatic system to accommodate the protein and fluid that was presented to them to enter the interstitial compartment at the tissue level. Lymphedema can be primary, can be secondary. Primary is genetic, secondary is to the acquired disorders. As per Bailey, which is a recent edition Bailey, the primary lymphedema is of these 5 types. Syndromic primary lymphedema, systemic visceral involvement, pre or postnatal onset, lymphedema with overgrowth, vascular or cutaneous manifestations, late onset lymphedema and congenital onset lymphedema. इतना डिटेल में भी नहीं पता because this would come as a short note to you. So even if you enumerate that it's a primary and secondary, it is sufficient. इतना ज़्यादा याद करने का requirement नहीं है. जो पुरानी बेली में थी उसमें कुछ terms different थे. उसमें there was the primary was divided into 3. One was congenital, one was lymphedema precoxa. Precoxa is adolescent, and one was tarda. Tarda मतलब late. So anything that is tarda, किसी भी जगह tarda use होगा, that is late. Thank you. Tarda means late presentation. So the lymphedema which happened before 1 year of age was congenital primary lymphedema. The lymphedema which happened between 1 year to 35 years was lymphedema precoxa, and lymphedema which was more than 35 years was tarda. Okay? That was the earlier classification. But because of the new changes, some of the books still have the old classification, but in Bailey, which is the most important book for you as at UG level, these are the different types of it. As described, depending on the phenotypes. There are 5 diagnostic groups. The syndromic one, there is only one number of abnormal features as a collective named as a syndrome. So lymphedema is part of the syndrome. There are multiple features also present, and lymphedema is one of them. Like in Turner syndrome, Noonan syndrome, along with the other genetic features, lymphedema is a part of the group. In systemic and visceral involvement, pre or postnatal onset. In some patients, even before birth, lymphedema can set in, include pericardial and pleural effusion ascites. So this means that there is multiple fluid collection at multiple different spaces. Lymphedema being one of them. Pericardial, pleural effusion, ascites, chylous effusions, pulmonary and interstitial meningitis, like Henneken syndrome. As I said, this is beyond your scope because it's difficult to remember, just for the sake of completion we are doing. Then Klippel-Trenaunay Proteus syndromes, Leeds lymphedema, and Milroy's. Remember this name. If you write one name, then this is to be secondary lymphedema. As the name suggests, it's an acquired disorder, and there can be multiple causes of acquired lymphedema. As you had said, filariasis. Filariasis is caused by? Okay. And which is the vector? Yes. Culex mosquito. It's very common in our country. As compared to the previous times, the incidence is decreasing, but it's still quite prevalent. So the most common cause of secondary lymphedema is lymphatic filariasis. Causative agent, as you rightly said, Wuchereria bancrofti. Adult worms, they nest in the lymphatic system. Because they're nesting there is no space for lymphatic reabsorption, so there is dysfunction. They can be asymptomatic or they can be associated with acute or chronic features. Majority patients, they are asymptomatic with no external signs of infection, but
the parasite transmission continues and the presentation is much later as lymphedema. Then in cases of malignancy, in our country, infection is the most common cause, but in Western countries, malignancy is more common because of malignancy, either due to the malignancy itself or its treatment. Like if there is a lymph node dissection, like in breast cancer, or if there is a radiotherapy given in that area, there will be extensive fibrosis. Because of the fibrosis, the lymph node channels are also fibrosed, because of which reabsorption is not happening. And because reabsorption is not happening, there is extracellular pooling of fluids, leading to lymphedema. So treatment, radiotherapy, lymph node resection, and mostly it's seen in breast cancer. In breast cancer, it is upper limb lymphedema. But in case of lymphatic filariasis, it's mostly lower limb. It can present as either unilateral or bilateral both. But in breast, if there is lymphedema on the site where the mastectomy has been done, on that side lymphedema is common. It is not possible that the right side mastectomy is done and lymphedema happens on the left side, because it's because of lymph node dissection. तो lymph node ही नहीं रहेगा तो reabsorption नहीं होगा तो peripheral pooling हो जाएगा. So most upper limb cases are related to breast cancer and treatment. Mastectomy is associated with lymphedema rates 25 to 50%. And lumpectomy में कम क्यों होगा? Mastectomy में हो रहा है but lumpectomy में नहीं हो रहा है lymphedema. Breast cancer में management में either we can do an MRM or we can do a BCS. ठीक है? तो अगर BCS दिया या lumpectomy किया, उसमें chances of lymphedema are lesser than MRM. Why? अभी बताया. MRM में क्या कर रहे हैं? MRM में क्या क्या करते हैं? हाँ, क्या क्या? लेमाइट. मैस्टेक्टमी नाम है. स्किन फाशर NSC तो हो गया, और क्या लेंगे? मैस्टेक्टमी को क्या? मैस्टेक्टमी क्या है? ब्रेस्ट रिमूवल, ब्रेस्ट टिश्यू और लिम्फ नोड. ठीक है, तो अगर लिम्फ नोड ही रिमूव कर देंगे तो ड्रेनिंग नहीं होगा. पर BCS में हम लिम्फ नोड नहीं रिमूव कर रहे हैं. रेडियोथेरेपी दे रहे हैं, पर रेडियोथेरेपी भी एक्सिला में सब केसेस में नहीं देते हैं. इसके लिए उसमें चांसेस ऑफ लिम्फेडिमा आर मच लेसर एज कंपेयर्ड टू MRM. देन देयर आर अदर कॉजेज एज वेल. अगर ट्रॉमा हुआ, लिम्फेटिक जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो गई, तो बैकफ्लो नहीं जाएगा, तब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कूलिंग हो जाएगा. इट कैन हैपन. ट्यूबरकुलोसिस में, उसमें भी चैनल्स खराब हो जाएंगे, फाइब्रोसिस होगा, प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन रहेगा. उसमें LG लिम्फोग्रानुला वेरिनम उसमें हो सकता है. क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस से लिम्फोग्रानुला वेरिनम होता है. माइक्रो में पढ़ा है डिटेल में. ठीक है, अगर शॉर्ट नोट आएगा लिम्फेडिमा में, यू कैन एक्सपैंड ऑन दीज पॉइंट्स डिपेंडिंग कितने मार्क्स का शॉर्ट नोट है. 5 मार्क्स का है, जितना लिखा है उतना लिखोगे, दैट वुड बी इनफ. बट इफ इट्स 10 मार्क्स शॉर्ट नोट, देन यू हैव टू एक्सपैंड अपॉन ईच पॉइंट. लिम्फेटिक फाइलियासिस में तुम एक्सपैंड कर सकते हो, और उधर लिम्फोग्रानुला वेरिनम. तो कहीं पे भी तुम थ्योरी जब भी पढ़ोगे, इफ देयर आर माइक्रोबायोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल थिंग्स, यू हैव टू ब्रश अपॉन देम. तुम लोग थर्ड ईयर हो ना, तो तुम्हारा पैथ का एग्जाम हो चुका है. तो जब भी होगा, यू व्हेन यू रीड दीज थिंग्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम आ रहे हैं, वेक्टर्स के नाम आ रहे हैं, जस्ट ब्रश अपॉन इट, सो दैट इफ इन एग्जाम यू आर आस्क्ड इन वाइवा और इन थ्योरी, you can expand upon any of the points because वो already तुमने पढ़ रखा है. अब differential diagnosis of lymphedema, how will you differentiate and what are the differential? बताओ. देख के. ठीक है. हाँ, तो bilateral है. हाँ, बोलो. Yes, good. Renal failure. जिसमें भी हाइपोप्रोटीनीमिया होगा, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन के चांसेस हैं, बिकॉज देयर विल बी फ्लूइड एक्यूमुलेशन, इट कैन मिमिक लिम्फेडिमा. कार्डियक फेलियर, रीनल फेलियर, लिवर डिसीज, सिरोसिस, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म. हाइपोथायराइडिज्म में कैसे मिमिक करता है? मिक्सिडी. यस, इट कैन मिमिक. देयर इज नॉन फिटिंग, सो इट कैन मिमिक एज लिम्फेडिमा. प्रीटिपियल ही फैट डिपोजिशन होता है, लाइपिडीमा कहते हैं उसको. तो लाइपिडीमा और लिम्फेडिमा में डिफरेंस. मिक्सिडीमा में भी
नहीं ग्रेव्स में होता है, बट हाइपोथायरॉयडिज्म में भी जो डिपोजिशन रहता है फैट का, दैट इज ट्रीटेबल. हाँ, दैट इज ट्रीटेबल. एंड सर्टेन एलर्जीज, अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स रहेगा तो भी वो यूनिलैटरल स्वेलिंग हो सकता है. दैट कैन आल्सो मिमिक lymphedema. Then venous disorders, superficial venous incompetency, varicose veins, deep vein thrombosis, उन सब में स्वेलिंग रह सकती है. स्वेलिंग होगी, पूलिंग रहेगी, ब्लड की पूलिंग होगी, या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की पूलिंग हो या ब्लड की पूलिंग हो. Wherever there is pooling, there is swelling. It can mimic lymphedema. या ट्यूमर से कंप्रेशन हो, abdominal mass अगर कुछ है and it is obstructing the venous drainage, then also it can mimic lymphedema. And same arteriovenous malformation, gravitational edema and trauma as we had earlier discussed. So clinical evaluation के लिए क्या क्या करते हैं? Any disorder clinical evaluation. कभी भी एग्जाम में तुम्हें क्लिनिकल इवैल्यूएशन या मैनेजमेंट पूछा जाए, यू हैव टू स्टार्ट विद हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन. ठीक है, तो पेशेंट क्या हिस्ट्री देगा लिम्फेडिमा में? नहीं, लिम्फेडिमा इज क्रॉनिक. स्टार्टिंग में भी स्टार्टेड विद क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव. So it will be a long-standing swelling which is gradually progressive. So slowly progressive limb swelling, which can be unilateral, which can be bilateral. Usually begins distally and may progress during the day. Distal क्यों begin होता है? Why not proximal? Distal is hands and proximal is this. So why does it start distally and not proximal? Because it is collecting from periphery. So initially gravitational forces की वजह से भी peripheral pooling would be more, and periphery में travel further thing to travel, it will take time. As we had discussed earlier, there was passive and active both mechanisms involved. तो passive से तो proximal वाला थोड़ा बहुत चला ही जाएगा, but active mechanism में जो चीज ज्यादा दूर से आ रही है उसको ज्यादा दिक्कत है, पास वाला तो चला ही जाएगा. ठीक है. और दूसरा कि पूलिंग ग्रेविटेशन की वजह से भी नीचे जाके सेटल करेगा, तो तभी ट्रीटमेंट में एलिवेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रीटमेंट. So usually begins distally, may progress during the day, and is precipitated by prolonged standing, relieved by elevation and compression movements. Limb often feels heavy and uncomfortable. कहीं पे भी pulling रहेगा, सेम हर्निया में है. लॉन्ग स्टैंडिंग के बाद ज़्यादा हर्निया में पेन शुरू होता है. पेशेंट हैज अ सेंसेशन ऑफ हर्निया आफ्टर लिफ्टिंग हेवी वेट्स और ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे, एंड हेवी एंड डिस्कम्फर्ट भी ड्यूरिंग एंड ऑफ द डे होता है. तो सेम चीज़ इसमें भी वर्क करेगा. So as we discussed the causes of secondary lymphedema, तो पेशेंट को हिस्ट्री हो सकता है फाइलेरियासिस का या एंडेमिक एरिया में रहने का, फाइलेरियल एंडेमिक रीजन्स, न्यूप्लास्टिक डिसीज, ट्रॉमा, सर्जरी, रेडियोथेरेपी. देयर इज हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल टू और फ्रॉम एंडेमिक एरियाज. ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे? एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे? हिस्ट्री में हमने देख लिया टाइप ऑफ स्वेलिंग, क्या ऑनसेट है, क्या प्रोग्रेशन है, और क्या देखते हैं स्वेलिंग के लिए हिस्ट्री में? फिटिंग कैन नॉट बी हिस्ट्री. पेशेंट से नहीं पूछोगे ना, दबाने पे दबा. ट्रीटमेंट हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री, रेजिडेंस पूछ सकते हैं एंडेमिक रीजन से है या नहीं. ठीक है. सो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नॉट दैट वैल्यूएबल. एंडेमिक, हाँ, एंडेमिसिटी इज इम्पोर्टेंट. ऑक्यूपेशन से क्या देखना चाहते हैं? इस केस में इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है. तो एग्जामिन फिर आते हैं हम एग्जामिनेशन पे. एग्जामिनेशन में स्वेलिंग का एग्जामिनेशन, स्वेलिंग के एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें करते हैं? पेनफुल, पेन इज अ सिम्टम which the patient will tell. Tenderness is a sign that we elicit. हाँ, तो एग्जामिनेशन में टेंडरनेस होता है और हिस्ट्री में पेन होता है. ठीक है.
और पेन सबसे पहले हम इलिसिट नहीं करते एग्जामिनेशन में, सबसे पहले वी हैव टू गो विद इंस्पेक्शन. क्यों? रीजन है व्हाई इंस्पेक्शन फर्स्ट देन पैल्पेशन. क्यों? बाद में भी तो ऑब्जर्व कर सकते. क्योंकि पेशेंट को पेन है, जब हम पेन दे देंगे उसको तो उसकी हमारे लिए कंप्लायंस कम हो जाएगी. वो उतना कंप्लाइंट नहीं रहेगा अपना हिस्ट्री बताने के लिए, हमें अपने ऑब्जर्वेशंस करने के लिए. अगर पेशेंट को लोअर एब्डोमेन पेन है एंड वी प्रेस लोअर एब्डोमेन तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी मास्क हो जाएगी. सो ऑब्जर्वेशन हमेशा बिफोर पैल्पेशन करें. So as an examination, limb swelling होगी. Initially it will be pitting and gradually it will become non-pitting. Why will that happen? Initially pitting, then non-pitting. Pitting का मतलब क्या है? हाँ, it will stay like that. क्यों रहेगा वैसे? ठीक. तो जब वो लिक्विड रहेगा या सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, फ्लूइड फॉर्म में रहेगा, देन हम प्रेस करेंगे तो फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाएगा, which will be pitting, and then it will come back to its natural form. But prolonged, जैसे lymphedema is a prolonged, long standing condition. So repeated collection के बाद subcutaneous fibrosis set in हो जाएगा. Once fibrosis sets in, तब pitting नहीं हो सकता, because there will be fibrous tissue there and fibrous tissue does not respond to compression. Okay? Same goes in lung. Lung fibrosis जब हो जाता है तो वो lung does not expand or contract, तो वो use की lung नहीं रहती. Same anywhere, fibrosis anywhere will lead to non-contractile or expanding tissue. ठीक है? कहीं पे डिजायरस होता है, कहीं हम सर्जिकली फाइब्रोसिस इंड्यूस भी करते हैं ताकि वो एरिया यूज के लिए नहीं रहे. So non-pitting because of subcutaneous changes. Then skin changes. What all skin changes can be seen? There's pudiorange. What is pudiorange? क्या क्या क्या? Orange what? No. Who said orange color discoloration? Peel. Pudiorange is pure मतलब peel of orange. It is not an orange discoloration. Never say that. और कौन से ब्रेस्ट कार्सिनोमा में ऑरेंज डिस्कलरेशन दिखा है? एग्जामिन किया ब्रेस्ट कैंसर. इट इज पील. ऑरेंज का जो पील रहता है कैसे पकड़ और पिंपली डिप्रेशंस वाला रहता है, दैट इज प्यूडियोरेंज. प्यूडियोरेंज और कैसे देखते हैं, कैसे बताएंगे वो प्यूडियोरेंज है? ब्रेस्ट में नहीं, पस डिस्चार्ज नहीं. प्यूडियोरेंज इज नॉट पस. प्यूडियोरेंज इज रिंग. ऑरेंज का सिर्फ पता है बीच बीच में जैसे पकरिंग हो जाता है, अंदर डिप्रेशंस आते हैं, उस टाइप का जो ब्रेस्ट दिखता है दैट इज प्यूडियोरेंज. कैसे देखते हैं वो? दो फिंगर के बीच में ब्रेस्ट टिश्यू को रख के उसको स्प्ले करते हैं. अगर स्प्ले करने के बाद भी वो पकरिंग रह रही है इसका मतलब वो प्यूडियोरेंज है, वरना दैट कुड बी बिकॉज ऑफ एडिमा. ठीक है? प्यूडियोरेंज से स्टेजिंग चेंज होती है ब्रेस्ट कार्सिनोमा की. हाँ, फाइनल स्टेज में क्या? नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगा तब बताना. ब्रेस्ट कैंसर का स्टेजिंग एकदम पता होना चाहिए. ठीक है? किससे स्टेजिंग चेंज हो रहा है, किससे स्टेजिंग नहीं चेंज हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है. कौन सा चीज से T3 T4 चेंज हो जाएगा वो इम्पोर्टेंट. साइज तो है, वो तो क्राइटेरिया अलग है. T3 से T4 कन्वर्ट. स्किन इन्वॉल्वमेंट किस किस को कहते हैं?
चेस्ट इन्वॉल्वमेंट है ना, इज प्यूडियोरेंस स्किन इन्वॉल्वमेंट? पढ़ के, ठीक है, तुक्के नहीं, पढ़ के बताना। क्लास हो चुकी होगी ना ब्रेस्ट कैंसर में, तो पढ़ के बताना। क्यों बोल रही हूँ पढ़ने के लिए? बिकॉज अगर मैं बता दूंगी तुम फिर से भूल जाओगे, पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगा। स्किन चेंजेस, प्यूडियोरेंस, इरिथमा, सेलुलाइटिस, ठीक है, थ्योरी में भी तो हुआ ही है। थ्योरी में तो स्टेजिंग पढ़ाई है, प्रैक्टिकल में स्टेजिंग नहीं पढ़ाया होगा। थ्योरी में तो पढ़ा है स्टेजिंग। केस भी नहीं देखा कोई ब्रेस्ट कैंसर का? बोर्ड में है नहीं कुछ? फाइब्रोएडेनोमा ब्रेस्ट कैंसर में डिफरेंट है। एग्जामिन खुद से हाथ फील किया था? नहीं, मतलब मैम ने एग्जामिन करने के लिए बोला था क्या? बस मैम ने एग्जामिन किया तो तुम लोग? अच्छा, यू डिडंट एग्जामिन। आगे से ऐसा कोई पेशेंट हो, ट्राई एंड एग्जामिन, because the field of a fibroadenoma is very much different from a breast cancer. तो वो आधा डायग्नोसिस आपके फील्ड से होगा फाइब्रोएडेनोमा का, और वो डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज फाइब्रोएडेनोमा भी फॉर्म है और ब्रेस्ट कैंसर फॉर्म टू हार्ड है। तो वो तुम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि वो कौन सा फॉर्म फाइब्रोएडेनोमा और कौन सा फॉर्म टू हार्ड इज ब्रेस्ट कैंसर? तो मोर एंड मोर यू एग्जामिन और यू नो, द मोर यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है, ब्रेस्ट एडेनोमा तो बिल्कुल मूव करता है, यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर है वो नॉन मोबाइल रहेगा। So there will be pudiorange, erythema cellulitis, hyperkeratosis. Hyperkeratosis is skin thickening. Keratosis is skin hyper मतलब layers, thickening, itching से जो reddish flaky skin हो जाती है, that is eczema. Fungal infection, lymph vesicles, ulceration, stemmer sign. ये MCQ point भी है, ये important है। जो डॉर्सम ऑफ टोज है, डॉर्सम इज व्हाट सरफेस, पैर में डॉर्सम कौन सा है, प्लांटर कौन सा है? हाँ हाँ, तो डॉर्सम का स्किन फोल्ड अपना पिंच करके देखो, आराम से पिंच होगा, और जिसको लिम्फेडिमा होगा उसका पिंच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है वहाँ पे, तो कैसे पिंच होगा? ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेटेड है, जो फाइब्रोसिस हो चुका है तो पिंच नहीं हो सकता। This is known as stemmer sign. There is inability to pinch a fold of skin on the dorsum of toes. Then something called as buffalo hump, which also happens on the dorsum of foot, and there is a tree trunk pattern. अभी मैं आगे एक इमेज दिखाऊंगी, उससे बताते हैं। Then अगर patient post malignancy lymphedema develop हुआ है तो there could be scars of the previous surgery. Examination में जो आप notice कर सकते हैं, या post radiotherapy कुछ skin changes हो जाते हैं, you can identify those skin changes if it is because of malignancy or radiation. As you can see in this image, ये जो चीज है, this is buffalo hump, dorsum of foot का thickening, और ये जो appearance है, that is tree trunk sign. ट्री का ट्रंक ऐसे होता है ना, फूला हुआ सा, पैर भी ऐसा हो जाता है। जो ये प्री मैल्यूलर स्पेस है, सबका एक डिप्रेशन होता है प्री मैल्यूलर स्पेस में, तो लिम्फेडिमा में प्री मैल्यूलर जो डिप्रेशन है, दैट इज लॉस्ट, लीडिंग टू अ ट्री ट्रंक अपीयरेंस। ठीक है, द स्टेजिंग ऑफ लिम्फेडिमा. So according to the International Society of Lymphology criteria, it's divided into 4 stages, starting from 0 to 1, 2 and 3. 0 is subclinical or latent. इसमें there is impaired lymphatic transport, but because it's the beginning stage, कोई swelling के signs नहीं आए हैं अभी तक patient में। have पेशेंट को फुलनेस, हेवीनेस वाली फीलिंग हो सकती है, बट क्लिनिकली आपको स्वेलिंग आइडेंटिफाई करना वुड बी डिफिकल्ट। तो that's why known as subclinical or latent. मतलब जो latent is that has not become apparent yet. फिर mild, one is mild, there is minimal swelling that pits. Initially it is pitting, so it's pitting with pressure and dissolves with elevation. प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पे जैसा एडिमा होता है, ऑलमोस्ट वैसा एडिमा मिमिक होगा लिम्फेडिमा के माइल्ड स्टेज में।
पूरे दिन खड़े रहोगे, पैर्स देयर विल बी लोअर लिम्ब स्वेलिंग, अगर सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तक नहीं होगी. सिमिलर विल हैपन इन माइल्ड. देन मॉडरेट, the swelling has increased and become non-pitting. So subclinical में there is no swelling, mild में the swelling has appeared but it is pitting. Moderate में the swelling has increased but is non-pitting. ठीक है? Non-pitting होने का reason tissue fibrosis and because it has become non-pitting tissue fibrosis, इसलिए वो elevation से resolve नहीं होगा. ठीक है? Then there is severe. बहुत एडिमा है, बिकॉज ऑफ एडिमा इतना स्किन स्ट्रेचिंग हो गया है तो और स्किन थिकनिंग हो गया है, डिस्कलरेशन डेवलप होता है, पिगमेंटेशन डेवलप होता है, हाइपर केराटोसिस और वॉटी ओवरग्रोथ. पूरा थिक इन ब्लैकिश ब्लूइश रेडिश डिस्कलरेशन हो जाता है, ट्री बार्क के जैसे. जैसे ट्री बार्क डार्क कलर का होता है, इवेंचुअली लिम्ब भी उस तरीके का दिखने लगता है. ठीक है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें देख सकते हो ये माइल्ड टू मॉडरेट के रीजन में आएगा. देयर स्वेलिंग बट डिस्कलरेशन शुरू नहीं हुआ. ये बफलो हम्प है एंड दिस इज अ डिस्कलरेशन दैट इज हैपनिंग. यहाँ पे देख पा रहे होगे स्किन के फोल्ड्स बन गए हैं और देखने से समझ आ रहा है कि स्किन बहुत थिक है. इधर वाला स्किन ऑलमोस्ट कंपेरेबल लग रहा है, इस वाले स्किन में और इस वाले स्किन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बट इधर तुम देख पा रहे होगे दैट इज अ थिक इन स्किन with superficial discolorations and इधर देख पा रहे हो पिट्स एंड वॉटी ग्रोथ जैसे इस साइड में डिप्रेशंस इधर. तो नॉर्मल स्किन से बहुत डिफरेंट दिखेगा. इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो बिकॉज लिम्फेडिमा इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, तो हमें आइडेंटिफाई करना है अर्ली स्टेज में. मॉडरेट टू सिवियर हो जाएगा तो क्लिनिकली आपको अपरेंट हो रहा है हाइपर केराटोसिस इतना हो रहा है, इट्स अनलाइकली कि तुम कंफ्यूज कर पाओ सेलुलाइटिस से या प्लूरल पीडल एडिमा से. बट माइल्ड स्टेज में टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम पीडल एडिमा यू हैव टू रूल आउट दोज कंडीशंस. तो यू हैव टू चेक कि उसका कार्डियक सिस्टम ठीक है, रीनल सिस्टम ठीक है, लिवर फेलियर के फीचर्स नहीं है, हाइपरप्रोटीनिया नहीं है. You have to rule all those conditions out before labeling it as mild lymphedema. ठीक है? So cardiac, renal, hepatic, nutritional, endocrine जो हमने शुरू में causes में पढ़ा था इधर. कार्डियक रूल आउट करेंगे, रीनल, लिवर, हाइपोप्रोटीनीमिया, एंडोक्रीन. एलर्जिक तो इतना रूल आउट करना इतना पॉसिबल नहीं है. एंड दूसरा वीनस डिसऑर्डर्स रूल आउट करेंगे. डीवीटी तो नहीं है, वैरिकोज वेन्स की वजह से कूलिंग ब्लड का नहीं हो रहा है, वीनस हाइपरटेंशन तो नहीं है बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल ट्यूमर्स. सो वी विल रूल आउट दोस थिंग्स. And because of cardiac conditions, echocardiogram, chest radiograph, electrocardiogram, and local causes of leg swelling as we discussed, superficial and deep venous pathology, arteriovenous fistula, and duplex ultrasound. So duplex is Doppler. Okay? So duplex ultrasound से we can identify the venous incompetencies or malformations. Confirm करने के लिए lymphocintigraphy is described in books, but clinically उतना यूज नहीं करते हैं lymphocintigraphy. हम CT और MRI प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें बाकी कंडीशंस भी एक्सक्लूड हो जाती हैं. एंड अगर सिग्निफिकेंट हम हनीकॉम्ब फ्लूइड फिल्ड सबक्यूटेनियस टिश्यूज देख सकते हैं. lymphocintigraphy नॉट इजीली अवेलेबल एवरीवेयर, ऑल्दो बुक में यही डिस्क्राइब्ड है, बट क्लिनिकली हम लोग CT MRI पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज अगर मैलिग्नेंसी के वजह से है तो वी कैन आइडेंटिफाई द लिम्फ नोड्स आल्सो. सो वो देख के फिर हम बेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वही इसमें भी लिखा है. पेल्विक एब्डोमिनल लिम्फेडिनोपैथी मासेस भी आइडेंटिफाई कर लेगा क्योंकि मासेस से भी वीनस कंप्रेशन होगा व्हिच कैन लीड टू लिम्फेडिमा, द फॉल्स सेंसेशन ऑफ लिम्फेडिमा. मैनेजमेंट
बिकॉज इट्स अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, तो मल्टी डिसिप्लिनरी मैनेजमेंट होगा एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज द पेशेंट इज प्रेजेंटिंग इन। अगर अर्ली स्टेज में है, पिटिंग एडिमा है, और वी हैव आइडेंटिफाइड इट टू बी फाइलेरिया एज अ कॉज, वी कैन स्टार्ट विद ट्रीटमेंट फॉर विचुरेरिया बैंक्रोफ्टाइड। सिर्फ माइल्ड केस में वो हेल्प करेगा, क्रॉनिक केस में वी माइट गेट, बट वो लिम्फेडिमा में रिलीफ नहीं देगा, वो पैरासिटिक कैरिंग कैपेसिटी को हमारी कम कर सकता है, बट पर से लिम्फेडिमा में नहीं हेल्प करेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी फाइब्रोसिस हो चुका है, पिटिंग से नॉन पिटिंग कन्वर्ट हो चुका है। तो लिम्फेडिमा की वजह से जो अनकंफर्टेबल हो रहा है पेशेंट को, उसमें हेल्प नहीं करेगा पैरासिटिक ट्रीटमेंट। थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है लिम्फ एजुकेशन से एंड डीकंजेस्टिव लिम्फ थेरेपी से। एजुकेशन का क्या मतलब है? यस, वेरी गुड। एजुकेटिंग, बिकॉज lymphdema patients are more prone to infections, so they have to be counseled about how to care for their limbs and to prevent any infection, especially breast cancer patient में पहले बहुत कॉमन होता था क्योंकि बहुत रेडिकल सर्जरीज की जाती थी पहले, तो लिम्फेडिमा के चांसेस बहुत हाई होते थे। ऐसे पेशेंट में हमेशा काउंसिल किया जाता है कि जिस हाथ का सर्जरी हुआ है उस हाथ में कैनुला नहीं लगवाना, बिकॉज ऑलरेडी वो कॉम्प्रोमाइज लिम्फ सिस्टम में अगर हम कैनुला भी, वीनस कॉम्प्रोमाइज भी कर देंगे, लिम्फेटिक्स इज ऑलरेडी हैज टेकन अ हिट, तो उसका जो रिटर्न है वो एकदम कम हो जाएगा, तो लिम्फेडिमा के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, कोई अगर पेशेंट को ट्रॉमा होता है, जैसे कार्डनिंग कर रहा है कोई या छोटा सा प्रिक हो जाता है, तो लिम्फेडिमा के बिकॉज इम्यून सिस्टम ने हिट लिया है और पेरिफेरल कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में दे हैव टू बी एडवाइज कि अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, दे हैव टू वेयर ग्लव्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर, एंड इफ एट ऑल दे गेट एनी प्रिक और local infection, they have to take treatment for it as early as possible. दूसरा है decongestive lymphatic therapy. What is this? Decongestive का मतलब रोड पे कंजेशन कम करना, मतलब जो जितना सामान है उसको कम कर देना, 100 कार से 50 कर देंगे, डिकंजेस्ट हो जाएगा। वही सेम चीज है, हमें फ्लूइड जो वहाँ पे है उसको कम करने का कोशिश करना है। पैसिव और एक्टिव दोनों मैकेनिज्म थे। पैसिव में तो वी हैव नो कंट्रोल ओवर, एक्टिव में वी कैन असिस्ट, बिकॉज एक्टिवली वैस्कुलेचर वो काम नहीं कर रहा है, हम एक्सटर्नली उसको वो एक्टिव मस्कुलेचर के लिए स्ट्रेंथ दे सकते हैं। तो डिकंजेस्टिव थेरेपी में एक तो लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव करता है, कोलैटरल लिम्फेटिक पाथवेज इंप्रूव करता है। मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज एलिवेशन में जो थोड़ा बहुत जो पिटिंग हो गया उसमें वी कैन नॉट हेल्प मच, बट फर्दर एक्यूमुलेशन एलिवेशन विल हेल्प इट। ठीक है। दूसरा मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज, कंप्रेशन गारमेंट्स आते हैं, उनका जैसे वैरिकोज वेन्स में कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती हैं, ऐसे लिम्फोडीमा के लिए स्पेशलाइज्ड कंप्रेशन गारमेंट्स आते हैं। वो गारमेंट पेशेंट को पहनने के लिए बोलते हैं, एंड वो एक एक्सटर्नल मोटराइज्ड इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड होता है विच कैन कंप्रेस एंड प्रोवाइड अ प्रेशर, सो दैट एक्सटर्नली उसका जो फ्लूइड है वो सिस्टम की तरफ जाने में हेल्प। क्या हाथ ऊपर करना है, पैर ऊपर करना है, क्या? हाँ, लेग रेजिंग केस में हम 2 मिनट के लिए ऊपर कर रहे हैं ना, एलिवेशन का मतलब 2 मिनट नहीं है। जैसे रात में सो रहा है तो एलिवेट करके सोना है, जैसे वैरिकोज वेन में काउंसिल करते हैं, अगर पॉसिबल है पेशेंट को तो दिल कीप 2 पिलोज अंडरनीथ, तो थोड़ा एलिवेटेड रहेगा। लाइक आई एम सिटिंग, तो अवॉइड करना है कि पैर हैंगिंग करके सिट करना, आई विल स्प्रेड माई लेग्स एंड देन सिट। बेसिक चेंजेस जितना हो सकता है, पूरे टाइम तो लटका के रखना इज डिफिकल्ट, बट एज मच एज पॉसिबल एलिवेट करके रखना, हाथ को ऊपर करके रखना, इस तरह से ना रखना, या पेशेंट्स कैन बी आस्क्ड टू कीप द हैंड लाइक दिस, कोई स्लिंग में लगा के। बहुत पेशेंट्स लिम्फेडिमा के ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट होते हैं, तो उनके हाथ में एक एक्सटर्नल स्लिंग लगा के देयर हैंड इज केप्ट लाइक दिस टू प्रिवेंट इट फर्दर नहीं हो, और जो थोड़ा बहुत कंपोनेंट है जो अभी तक फाइब्रोज नहीं हुआ है, दैट इज हेल्प। Skin care, as I explained, MLD is proximal massage of fluid along the lymphatic channel. जो manual lymphatic drainage है
उसी का बेटर है कंप्रेशन जो गारमेंट्स आने लगे हैं. मैनुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. पेशेंट को खुद करने को बोल सकते हैं घर में कि पेरिफेरली, बिकॉज यहाँ से यहाँ जाना है फ्लूइड, सो दे विल बी आस्क्ड टू प्रेस इट इन अ मैनर सो दैट द फ्लूइड गोज फ्रॉम हियर टू दिस वे. ठीक है, तो वो हम असिस्ट कर रहे हैं पेशेंट की सर्कुलेशन को. तो कंप्रेशन बैंडेज में मल्टी लेयर बैंडेजिंग होती है कंप्रेशन गारमेंट्स, जिसमें इंटरमिटेंट न्यूमैटिक प्रेशर रहता है. न्यूमैटिक इज एयर प्रेशर. इसमें लेकिन लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है कंप्रेशन गारमेंट में? आर्टीरियल इनसफिशिएंसी. इतना ज्यादा प्रेशर नहीं कर देना है कि उसका वेसल कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ठीक है, उतना ही प्रेशर रखना है जितने में आर्टीरियल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा. तो ऐसे पेशेंट्स में उनको काउंसिल करके रखना है कि अगर एकदम से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन हो जा रही है कंप्रेशन ड्रेसिंग के टाइम पे, देन दे शुड रिपोर्ट दैट. Surgical treatments are only considered if the conservative therapies are failed. Surgical बहुत ज़्यादा नहीं करते हम, पहले फिर भी करते थे वे बैक 1950-60s में. अब इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज बहुत मॉर्बिड सर्जरीज है. 2-4 नाम अगर याद रखें तो रख सकते हो. चार्ल्स प्रोसीजर, होमन्स प्रोसीजर. चार्ल्स प्रोसीजर में क्या करते हैं, पूरा ये जो स्किन है ये पूरा हटा देते हैं टिश्यू के साथ, और सिर्फ नीचे एक्सपोज मसल का लेयर रह जाएगा, और इवेंचुअली बाद में उस पर हम ग्राफ्ट लगा देंगे. बट तुम खुद सोचो कितना मॉर्बिड प्रोसीजर है. यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू पूरा निकाल दिया, तो पूरा ही एक्सपोज पड़ा हुआ है. दूसरा था ह्यूमन्स प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, स्किन को इंसाइज करेंगे, स्किन को ऊपर एलिवेट कर देंगे, लेकिन सबक्यूटेनियस टिश्यू का वेज निकाल लेंगे और फिर वापस स्किन से कवर कर देंगे. बट इतने लंबे डिस्टेंस पे वो करना, इतना बड़ा टिश्यू डिफेक्ट क्रिएट करना इज अ मॉर्बिड प्रोसीजर. तो बहुत हेल्प नहीं मिलता था पेशेंट को, इसलिए दोज थिंग्स आर ऑलमोस्ट फेल्ड आउट. अभी ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं कोई. Okay, then there is lymphangitis. Lymphangitis, like any itis, is an inflammation. The inflammation of the lymphatic channels. Most commonly cellulitis जो cause करता है वही चीज़ है, Streptococcus pyogenes, Staph aureus. It can come as a short note, either अलग से या as a combination with cellulitis, lymphangitis. इसका आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है? There are painful red streaks in affected lymphatics. जैसे यहाँ पे ये जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं, अलोंग दीज जो तुम्हें ग्रीन दिख रहा है, पेशेंट का हाथ में यू कैन सी रेडिश स्ट्रीक्स अलोंग द चैनल्स, दैट इज lymphangitis. there will be painful red streaks, source of infection को जो there will be draining. Because there is infection, there will be tissue destruction, there can be gangrene and ulceration. कहीं पे भी inflammation हो, यही mechanism of action होता है. पहले टिश्यू डिस्ट्रॉय होगा, अगर वैस्कुलरिटी कॉम्प्रोमाइज है गैंग्रीन हो सकता है. गैंग्रीन एंड अल्सरेशन बोथ कैन occur. Anywhere there is tissue destruction, there is release of proteases. Proteases will lead to ulceration and gangrene. And because it's a systemic process, initially it is localized. If not controlled timely, it can convert to septicemia. Lymphangitis is often accompanied by painful lymph nodes, जो draining lymph nodes रहेंगी. ये तो collecting channels का lymphangitis है. Eventually वो node में drain होगा तो painful lymph node, depending on the region जहाँ lymphangitis हो रहा है, उसके corresponding जो node है वो inflamed हो सकते हैं. मैनेजमेंट क्या होगा lymphangitis का? कोई सबसे पहले कोई भी मैनेजमेंट आप बताते हो, तो पहले तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन डिस्कस हो गया. दूसरा चीज पेशेंट मैनेजमेंट, डिसीज कंट्रोल और सपोर्टिव केयर. तो सपोर्टिव केयर में पेशेंट का हाइड्रेशन देखोगे, बिकॉज इट्स एन इन्फेक्शन एंड सेप्टिसीमिया भी हो सकता है. तो पेशेंट के बेसिक वाइटल्स, बीपी अगर कम है तो उसके लिए आईवी रिप्लेनिश करोगे. यूरिन आउटपुट कम है, आईवी रिससिटेशन रहेगा. यूजुअली एनएस या आरएल से हम रिससिटेशन स्टार्ट करेंगे. ब्लड शुगर ऊपर नीचे हो सकता है. एनी इन्फेक्शन कैन लीड टू डिरेंजमेंट इन द ब्लड शुगर मेटाबॉलिज्म, सो वो देखेंगे हम पेशेंट का. तो बेसिक सपोर्टिव केयर जो रहेगा. सेप्टिसीमिया का जो बेसिक मैनेजमेंट है, सेमली स्टार्ट विद दैट. स्पेसिफिकली इसमें लिम्फेंजाइटिस में रेस्ट एंड एलिवेशन,
वो लिम्फेडिमा का प्रिंसिपल था। रेस्ट क्यों, ज़्यादा वर्क करेंगे, ज़्यादा पेरिफेरल कूलिंग होने के चांसेस हैं, सो रेस्ट द एरिया एंड एलिवेटेड बिकॉज एलिवेशन विल लीड टू ड्रेनिंग, ठीक है। एंड ट्रीटेड विद इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स। यूजुअली लिम्फेंजाइटिस में अगर हाई ग्रेड रहेगा तो इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स का रिक्वायरमेंट होगा। ओरल भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पेशेंट्स कंडीशन। इफ बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर नहीं है, पेशेंट इज स्टेबल, तो हम ओरल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यूजुअली पेशेंट्स विल प्रेजेंट विद हाई ग्रेड फीवर, सेप्टिसीमिया, तो देन वी स्टार्ट विद इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो तो चलेगा। जो अक्यूट लिम्फेंजाइटिस है दैट कैन लीड टू परमानेंट लिम्फैटिक डैमेज, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं और दैट कैन सेट इनटू लिम्फेडिमा। टिपिकल एग्जांपल इज फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस में इनिशियली लिम्फेंजाइटिस के ही एपिसोड्स होते हैं, मल्टीपल एपिसोड्स होते होते कंज्यूमेंटली फाइब्रोसिस होने लगता है एंड देन इट सेट्स इनटू लिम्फेडिमा। जो फाइलेरियासिस वाला पेशेंट रहेगा या तो बिल्कुल ही एसिम्प्टोमेटिक होगा या उसको रिकरेंट लिम्फेंजाइटिस के एपिसोड की हिस्ट्री रहेगी which can help in diagnosis. दूसरा ट्यूमर्स ऑफ लिम्फैटिक्स, lymphangioma, like blood has hemangioma, lymph has lymphangioma, so it's dilated dermal lymphatics. They are generally divided into two. It's a benign disorder, lymphangioma. Oma is swelling, itis is inflammation, oma is swelling. So oma anywhere is a swelling. Okay, so it's a lymphangioma, swelling of the lymph. It's a benign disorder. It can be simple or capillary lymphangioma and cavernous or cystic hygroma. There are isolated sequestered segments of lymphatic system that retain the ability to produce lymph. There are specific segments in the lymphatic channels. Instead of just carrying them, they can still accumulate fluid. तो वो एक लेक जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा. That's why it leads to swellings. This tumor can increase in size and grow larger within the surrounding tissue. Majority are benign and 90% of them can be identified with the first year of life. जो cavernous है, दो तरीके के हैं, simple and cavernous. जो cavernous है वो neck और axilla में रहते हैं, very rarely trunk पे होते हैं. जो simple capillary hemangiomas है वो head neck region में, axilla में हो सकते हैं and they can also present in abdominal or thoracic cavity. Cavernous नहीं, बहुत ही rare है, simple can still be present. And treatment क्या होगा lymphangioma का? Because they are expanding lake-like lesions, excision. Surrounding tissue को adequately conserve करते हुए excision. फिर lymphangiosarcoma, Long's, also known as Stewart-Travis syndrome. It's a very rare tumor. Long-standing lymphedema में develop करता है. 10 to 20 years तक lymphedema अगर रहेगा, that can develop into Stewart-Travis. As you can see in this image, this patient had lymphedema, and this has progressed to this ulceration. This ulceration, the patient can present with an acute worsening edema and appearance of subcutaneous nodules, which can have hemorrhage and ulceration. Because as such, जहाँ पे भी hemorrhage होगा malignancy में means fast growing tumor. वो इतना fast grow कर रहा है कि उसकी blood supply उसकी expectation को meet नहीं कर पा रही है. So there becomes hemorrhage and ulceration. So it's a fast growing tumor. It can present as single or multiple lesions with bluish or reddish color skin. As you can see in this reddish and bluish area, and there are subcutaneous nodules. These subcutaneous nodules can form satellite nodules, and all those can join to form one single lesion, or they can present as separate lesion. Like in this image, you can see this is a satellite nodule, this is a satellite nodule, and this is the main lesion. This could also be a satellite nodule. These have started combining. Management क्या होगा इसका? Diagnosis with skin biopsy. कहीं पे भी अल्सर रहता है तो डायग्नोसिस के लिए जब हम बायोप्सी लेंगे, we will take from the ulcer edge. Why? समझा नहीं. हाँ, ग्रेडिंग के लिए बायोप्सी ग्रेडिंग के लिए ही कर रहे हैं, बट वाई फ्रॉम द अल्सर बेड
अल्सर मार्जिन एंड नॉट फ्रॉम बेड। यहाँ पे अल्सर ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, यहाँ से क्यों नहीं लेंगे, पेरिफ्री से क्यों लेंगे? टिश्यू इन्फ्लेटरी नॉर्मल और अबनॉर्मल में डिस्टिंग्विश करना बेटर रहेगा हमारे को। दूसरा जो सेंटर रहेगा ना, मैक्सिमम नेक्रोटिक रहेगा, क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। तो नेक्रोटिक टिश्यू में मैलिग्नेंसी आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। जो डेड हो गया उसमें कैसे बताएंगे कि वो कैंसर का डेथ था या नॉर्मल डेथ था? तो इधर नॉर्मल टिश्यू होने के चांसेस ज्यादा हैं, सो देयरफॉर इट्स इजियर टू आइडेंटिफाई मैलिग्नेंट सेल्स। So it's confirmed by skin biopsy. ट्रीटमेंट इज सर्जरी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। कीमो रेडियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। वाइल्ड लोकल एक्सिजन, डिपेंडिंग कि हमें क्लियर मार्जिन मिल रहे हैं या नहीं। इस केस में बिकॉज दे आर नॉट क्लियर मार्जिन अपसाइड, सो हमने पूरा एम्पुटेशन किया। पर अगर इधर ये लीजन होता तो हम वाइल्ड विद क्लियर मार्जिन अगर पॉसिबल था तो हम वी ऑफर वाइड लोकल एक्सिजन विद R0, मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक मार्जिन में भी नहीं रहना चाहिए। और अगर वो नहीं मिल पाता है हमें क्लियरेंस, देन एम्पुटेशन। और अगर मोस्ट केसेस में सब में जरूरी नहीं है कि लिम्फ नोड्स में भी मैलिग्नेंसी गया हो। अगर लिम्फ नोड तक ट्रैवल कर रहा था तो लिम्फ नोड एक्सिजन, अगर ट्रैवल करा है तो। अगर नहीं करा है तो सिर्फ लोकल वाइड लोकल एक्सिजन करेंगे, दैट वुड बी इनफ। ठीक है, कुछ डाउट? एक बहुत इम्पोर्टेंट या हाई यील्डिंग टॉपिक नहीं है, पर अगर एग्जाम में आएगा तो स्ट्रेट शॉट एक नोट है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो बताना थोड़ा मुश्किल है, तो एक बार इतना भी लिखोगे दैट वुड बी इनफ, दैट वुड हेल्प। सी आई डोंट नो, बिकॉज मैंने लास्ट टाइम पूछा था क्या टॉपिक है। आई ऑल्सो प्रेफर कि टॉपिक तुम्हें भी पता हो, बिकॉज दैट्स इजियर। लास्ट टाइम भी किसने बात किया था मुझसे, जब ब्रूनो मैम लेक्चर लेने आई थी ना, तो हाँ, तो सीआर ने किसी ने बात किया था, तो मैंने हरने बोला था, बट देन मैम टुक द लेक्चर बिकॉज इट्स इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अगर तुम लोग भी पहले ब्रश अप कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा क्लास होगा, अगर सीआर मुझे कॉल करेगा, आई विल डेफिनेटली टेल द टॉपिक। नहीं, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बिगनिंग चाहिए, बट मेरे को एचओडी सर ने जो टॉपिक कवर करने के लिए बोला ना, तो मैंने वो कवर किया। मैं तुम्हारा बता सकती हूँ सर को, इफ यू वांट समथिंग एल्स वी कैन डिस्कस दैट। ठीक है, अच्छा तुम्हारे लेक्चर थिएटर में क्या डिस्कस होता है? एक्चुअली दिस इज अ शॉर्ट ग्रुप डिस्कशन क्लास, सो आइडियली दिस इज नॉट अ थ्योरी क्लास, दिस इज सपोज टू बी अ क्लास वेयर या तो पेशेंट अवेलेबल हो, हम पेशेंट डिस्कशन करें, या कोई शॉर्ट केस का डिस्कशन इन थ्योरी कर रहे हैं। जैसे अगर इंग्वाइनल हर्निया का पेशेंट नहीं है तो हम इंग्वाइनल हर्निया वैसे ही डिस्कस कर ले, या एब्डोमिनल हर्निया या ब्रेस्ट का केस। तो तुम ये कर सकते हो कि वार्ड में कभी भी फाइंडिंग वाला केस है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, उसका एक हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेके रखो, एक डमी हिस्ट्री एग्जामिनेशन रेडी आएगा। जो भी नेक्स्ट क्लास होगा हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्लास लेती हूँ, आई एम नॉट श्योर कि कब होगा, अगर होगा तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे, आई विल कम आफ्टर 2 वीक्स, तुम हर्निया से स्टार्ट कर सकते हो। हर्निया हो रखा है डिस्कस, इंग्वाइनल हर्निया, एनाटमी से विल स्टार्ट। ठीक है, तो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ा बेटर रहेगा। तो इसका एडवांटेज बस ये होता है कि रिटर्न होता है तो जो कम्युनिकेशन एरर में लॉस हो जाता है वो इजी रहता है। दूसरा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से यू विल गेट एन आइडिया कि इंग्वाइनल हर्निया में इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, फीमोरल हर्निया क्या है, सब में क्या डिफरेंस है, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार वो समझ आएगा तो एग्जामिनेशन बिकम्स वेरी इजी। So if I take a class maybe 2 weeks later, तो इंग्वाइनल हर्निया एक बार पढ़ के आना, तो we can go through that। एग्जाम से भी पढ़ सकते हो और थ्योरी भी पढ़ सकते हो, और तुम लोगों को भी पता होगा, then it's easier to discuss further। नहीं तो फिर हम उसी चीज में घूमते रहेंगे जो बिल्कुल बेसिक वाला।